This is another video in continuation of our series of legal current affairs. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. We are discussing legal current affairs in form of questions so that you can practice, you can get to know what are the important topics for your legal current affairs section for different law entrance examinations. Starting with the first question of this video, the Personal Data Protection Bill 2019 was introduced by the government on based on the draft which was prepared by which of the following committee. सबसे पहले ये समझते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है दिस केम थ्रू आफ्टर द राइट टू प्राइवेसी जजमेंट. व्हाट इज द नेम ऑफ द जजमेंट? के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट, जहां पे ही बोला गया that right to privacy is a fundamental right. Now in that judgment only, why has this question come up? Because recently दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन हुआ था कि राइट टू बी फॉरगॉटन भी एक राइट है हमारे पास. दैट मीन्स कि जो हमारे पर्सनल डेटा एग्जिस्ट करता है ऑन इंटरनेट और एनीवेयर एल्स वी कैन गेट इट रिमूव्ड. दैट इज राइट टू बी फॉरगॉटन. तो वो प्ली जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ की थी, इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं. नाउ द कमिटी दैट passed this bill, that recommended for this bill was Justice B.N. Krishna Committee. Moving forward, how much contribution to the PM's National Relief Fund is exempted from income tax? ये जो PM National Relief Fund है, अब सबसे पहले इसकी जो नेचर है ये एक स्टैट्यूटरी फंड है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंड नहीं है जैसे कंसोलिडेटेड फंड है. ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है बट यहाँ पर ये दिस फंड इज अ स्टैट्यूटरी फंड, इट हैज कम अंडर अ स्टैट्यूट. अब इसमें जितने भी कंट्रीब्यूशन है वो कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम टैक्स. मूविंग फॉरवर्ड, who is the first union law secretary to be appointed as a judge in the high court? Now speaking of the union secretary here, law secretary Anup Kumar Mendiratta, he is the first to be appointed law secretary to be appointed as a judge of which court? Delhi High Court. इनको Delhi High Court का judge appoint किया गया है. Before he was the union law secretary, he was functioning as a magistrate. So from magistrate he became a union law secretary. From union law secretary he became a Delhi High Court judge. Moving forward, NEP 2020 that is National Education Policy जो इंट्रोड्यूस करी गई थी, उसमें what is the name given to National Assessment Center to be created to assess students? तो इस सेंटर का नाम है पारक. You can check the full form of पारक. It is Performance Assessment Review Analysis of Knowledge for Holistic Development. Then मूविंग फॉरवर्ड, एनईपी के बारे में यू शुड नो. एनईपी जो इंट्रोड्यूस हुआ है रिसेंटली, आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन एनईपी, यू कैन चेक दैट एज वेल. सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे हेल्ड दैट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन पार्डन प्रिजनर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग डेथ रो वंस. तो वो प्रिजनर जिनको डेथ रो में कन्विक्ट किया है and even if they have not served the minimum period of 14 years of sentence, governor of state can pardon their punishment. सबसे पहले ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, ये आई in the case of state of Haryana versus Rajkumar Bittu. Now here what the court did was section 433A CRPC बोलता है कि कोई भी अगर ऐसे एक्ट है, ऑफेंस है जिसमें हमें पनिशमेंट दी गई है फॉर डेथ रो या फिर लाइफ इम्प्रिजन, डेथ रो से लाइफ इम्प्रिजनमेंट कम्यूट किया गया है, द इम्प्रिजनमेंट हैज बीन कम्यूटेड, देन इन दैट केस मिनिमम 14 years हैज टू बी सर्व्ड बाय द पर्सन इन द प्रिजन. बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवररूल कर दिया है थ्रू दिस पर्टिकुलर जजमेंट, जहां पर ये प्रोवाइडेड है कि गवर्नर पार्डन कर सकता है इवन इफ 14 years हैव नॉट बीन सर्व्ड. देन which state high court legal service committee has conducted first e-lok adalat to settle cases via video conferencing? अब ये जो लोक अदालत है ये है छत्तीसगढ़ की. लोक अदालत बेसिकली क्या करती है? लोक अदालत इज सेटअप फॉर स्मॉल केसेस जहां पर कंसिलिएशन, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट किया जा सकता है, मीडिएशन कंसिलिएशन करी जा सकती है. मूविंग फॉरवर्ड,
who filed the petition in the Supreme Court that allowed the women to appear for the NDA exam. NDA exam जो आर्मी का एग्जाम होता है, ये पिटिशन फाइल करी थी बाय कुश कालरा. इसको कुश कालरा केस के नाम से भी पॉपुलरली जाना जाता है. एंड इस पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट ने NDA एग्जाम वुमेन को अलाउ कर दिया इन ऑर्डर टू अपियर. देयर इज वन मोर जजमेंट दैट आल्सो केम थ्रू RIMC, एक बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है इन देहरादून फॉर मिलिट्री स्टूडेंट्स, एंड वहाँ पर भी विमेन का एडमिशन अलाउ कर दिया गया है. इट इज एन ऑल बॉयज स्कूल एट प्रेजेंट. देन which of the following is not a term for drone operations? ड्रोन ऑपरेशंस, ड्रोन के रिस्पेक्ट में भी ड्राफ्ट लॉ आया है. ये भी हमने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डिस्कस किया है. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, डू फॉलो अस देयर, बिकॉज इंपॉर्टेंट ये जो करंट लीगल अफेयर्स है ये हम बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं जब भी कुछ ऐसा आता है. तो अब ड्रोन ऑपरेशंस की जब हम बात करते हैं, ग्रीन जोन एग्जिस्ट करता है, येलो जोन एग्जिस्ट करता है और रेड जोन ऑल्सो एग्जिस्ट. Orange zone does not exist. Moving forward, gestation limit for termination of a pregnancy of a woman has been increased. How many categories have been specified under the new Medical Termination of Pregnancy Amendment Act? अब ये जो termination of pregnancy आया है, ये आया है from 20 weeks to 24 weeks. अब ये terminate करी जा सकती है in 24 weeks for certain class of women. अब ये women के क्या classes हैं, कितने classes में ये divided है? These classes have been divided into 7 categories. बहुत टाइप के जो फीमेल्स हैं वो उसमें डाले गए हैं, जैसे कि रेप विक्टिम जो है, कोई माइनर है, उन केसेस में ऐसे केसेस कैटेगरीज बनाई गई हैं जहां पर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है 20 वीक्स के बाद भी. मूविंग फॉरवर्ड, द लास्ट क्वेश्चन. Central Empowered Committee CEC constituted by Supreme Court has asked the Assam government to take action on illegal construction in the identified wildlife corridors of Kaziranga National Park. This is the correct answer here. इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है. बी रेगुलर विद लीगल करंट अफेयर्स. वी आर पोस्टिंग दीज वीडियोस. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर प्लेलिस्ट जहाँ पे वी कीप डिस्कसिंग लैंडमार्क जजमेंट्स, इंपॉर्टेंट केसेस हम हर मंथ डिस्कस करते रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फुल फ्लेजेड मॉड्यूल, वो भी अवेलेबल है ऑन आवर वेबसाइट www.lawdigest.in. एंड इन केस कोई और क्वेरी है आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए. ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल, press the bell icon ताकि आपको immediately notification आ जाए, and don't forget to follow us on Instagram.